हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग सीए एग्जामिनेशंस। As I have already discussed the revision test paper for income tax CA Inter November 21 attempt. In this video, this is the last part of the RTP series that I have been releasing. In this video, I'll be discussing the revision test paper of GST Part B, that is Goods and Service Tax, that has been issued by the Institute for CA Inter November December 21 attempt. Now, let us start with the objectives part first, and then we'll move on to the subjective part. There are two separate parts for direct tax. DT के मैंने दो अलग अलग parts में discussions करे हैं. First part में objective questions है, second part में subjective questions है. The link I'll be sharing along with this video as well. So आप लोग उसे properly go through करके देख सकते हैं. And after completion of this video, if there is any kind of doubt relating to any question or any kind of presentation, etc., so do feel free to. चलिए, so let us start. Part B, indirect tax objectives. Charitable Trust is registered under Section 12AA of the Income Tax Act. The trust conducted a 3-day residential yoga camp among people on the occasion of International Yoga Day. ठीक है, yoga camp conduct किया है, advancement of yoga, and charged 7,500 per person inclusive of stay and food. ठीक है. Trust also conducted programs for advancement of education. दो अलग अलग काम हो गए, advancement of yoga, advancement of education. ठीक है. चैरिटेबल ट्रस्ट है, 12AA में, इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड भी है. एज्ड 65 अबव इन मेट्रो सिटीज. A nominal fee was charged for the same. ठीक है. A trust received following donations during the month of September. इन्हें donations मिले हैं. Solid Steels Private Limited donated RO water plant to the trust costing 75,000, and उस पर क्या लिखा हुआ है? Donated by Solid Steel Private Limited, trusted by all. ठीक है, तो उन्होंने खुद का नाम भी लिख के दिया है और अपना वो जो भी उनका टैगलाइन होगा वो पूरा उन्होंने लिख करके और फिर वो वाटर प्लांट ट्रस्ट को डोनेट किया. Mr. Prasanna, a lawyer, donated chairs to the trust costing 25,000 and love all is printed on chairs. उसने ऐसा कुछ अपना नाम, अपना मतलब प्रमोशन टाइप ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ उसने लिख दिया लव ऑल एंड अपना एक फर्नीचर उन्होंने ट्रस्ट को डोनेट कर दिया. The following are the details of GST payment. अब यहाँ पर हम पेमेंट की बात पर आ गए, है ना. अभी तक हमको क्या बताया था, ट्रस्ट को क्या क्या मिला है या ट्रस्ट ने क्या क्या सर्विसेज दी हैं. अब हम बात कर रहे हैं ट्रस्ट ने जो जो पेमेंट करा. GST 175 was paid for the purchase of motor vehicle for transportation of needy persons. Including seating capacity including driver is 13. ठीक है. GST of 245 was paid for works contract. ठीक है. Charitable Trust owns and manages a Gurudwara. It rented the community hall for a rent of 8,500 per day for a marriage function. It also rented the commercial shop for 10,000 per month per shop. You can assume that the trust is registered and all the transactions are intrastate only. Conditions for ITC are fulfilled. ठीक है, मतलब जो इनवॉइस होना चाहिए, पे हो जाना चाहिए, वो जो बेसिक कंडीशंस होती है आपकी ITC वाली, वो सारी फुलफिल हो चुकी हैं. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन चूज द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर 1 to 4. ठीक है, चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट. एडवांसमेंट ऑफ योगा एग्जेम्प्ट है कि एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन एग्जेम्प्ट है कि दोनों ही एग्जेम्प्ट है और कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं है. ठीक है. अब देखो, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि इन्होंने एक्टिविटीज क्या क्या करी हैं और उस बेसिस पे डिसाइड करते हैं. तो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, वी ऑल नो, जीएसटी हम सबने पढ़ा हुआ है कि जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट होती हैं उनकी कुछ एक्टिविटीज को, काफी सारी, इनफैक्ट नॉट कुछ, काफी सारी एक्टिविटीज को सरकार ने क्या दे रखा है, एग्जेम्पशन दे करके रखा है. ठीक है, तो अपने को ये देखना है कि हम उस एग्जेम्पशन वाली कैटेगरी में फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना. पहला आपको बोला है एडवांसमेंट ऑफ योगा, तो एडवांसमेंट ऑफ योगा, हाँ, एडवांसमेंट ऑफ योगा इज कवर्ड अंडर एग्जेम्पशंस, तो यस इट विल बी एग्जेम्प्ट. एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन भी एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन उसमें से कुछ कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी एग्जेम्प्ट है, जिसमें से एक होता है जो हमें इन्होंने दिया है कि 65 ईयर्स के ऊपर के जो लोग होते हैं, मतलब एजेड लोग जो है, सीनियर सिटीजन, बेसिकली 65 से ऊपर वाले, उन लोगों को अगर कुछ एजुकेशन वगैरह देने के लिए आपने कोई कैंप या ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज करा है तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट रहेंगी. बट द कंडीशन इज दैट वो जो पीपल हैं वो कहाँ लोकेटेड होने चाहिए, रूरल एरिया में होना चाहिए. इन्होंने कहाँ के लोगों के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया है, मेट्रो सिटीज के लिए, तो यहाँ पर आप एग्जेम्पशन से बाहर हो जाते हो. तो बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है अपने को. जो आप पढ़ोगे आपकी मॉड्यूल्स में, तो एग्जेम्पशंस में आपको ये सेंटेंस मिलेगा, conduct of educational programs for the people aged 65 years above
इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो रूरल एरियाज लिखा होता तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता, लेकिन क्योंकि मेट्रो सिटीज है ये यहाँ पर एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से एक एक्टिविटी एग्जेम्प्ट हो रही है हमारी, एडवांसमेंट ऑफ योगा, है ना। चलो तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा आंसर ए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस रिसीव्ड बाय, इसको टिक कर देते हैं, चेक कर लेंगे एक बार हम, है ना, चारों हो जाए फिर एक साथ चेक करते हैं। डोनेशंस रिसीव्ड में से कौन से टैक्सेबल हैं। डोनेशंस रिसीव्ड में हमको एक कंडीशन याद रखना है, जब भी आपको कोई डोनेशन मिलता है तो वो कब एग्जेम्प्ट रहेगा। तो एक बहुत पुरानी मतलब ये याद रखने का अच्छा तरीका है, ऐसा कहा जाता है कि जब दान करो तो उसका मतलब बेसिकली आपको दान कर करके उसका डिंडोरा नहीं पीटना है। लाइक यू शुड नॉट बोस्ट अबाउट दैट आई डोनेटेड दिस पर्टिकुलर थिंग, या मैंने यहाँ पर डोनेट किया वहां डोनेट किया। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप सीधे हाथ से दान करो तो मतलब दान इतना चुपचाप होना चाहिए कि अगर सीधे हाथ से करो तो उल्टे हाथ को भी पता ना चले। ये दान कर रहे हो आप, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, इट शुड बी सटल, है ना। ऐसा नहीं कि आप लोगों को बता रहे हो कि मैंने 10 लाख रुपए डोनेट कर दिए। सो उसी लॉजिक से आप यहाँ पे प्रोविजन याद रख सकते हो ना। दिस इज अ ट्रिक बेसिकली टू रिमेम्बर कि डोनेशंस अगर आपको मिले हैं तो वो एग्जेम्प्ट होंगे अगर देने वाला शांति से दे रहा है, ठीक है। अगर देने वाला डोनेट करते करते खुद का कुछ प्रमोशन कर रहा है, खुद का कुछ उसमें बेनिफिट ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो डोनेशंस एग्जेम्प्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो 2 डोनेशंस बोले हैं उसमें एक में देखो उसने क्या करा, जो ये स्टील वाला था उसने खुद का नाम वाम लिखवाया है और ट्रस्टेड बाय ऑल और ऐसे सब कुछ कुछ किया है, ताकि लोगों को पता चले कि ये डोनेशन इन लोगों की तरफ से हुआ है, और लोग कहीं ना कहीं कस्टमर उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो, है ना। एक तरीके से उसके बिजनेस का भी कहीं ना कहीं उसने फायदा करने का सोचा। लेकिन ये जो दूसरे व्यक्ति हैं ये भी लॉयर है, ये भी अपना प्रैक्टिस बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं, पर इन्होंने क्या लिखा है, सिर्फ लव ऑल। ऐसा कहीं से कहीं तक कोई हिंट नहीं आ रही है कि ये देने वाला व्यक्ति लॉयर है और आप इससे प्रोफेशनली सर्विसेज वगैरह भी ले सकते हो। तो बेसिकली उसने अपना प्रोफेशनल फायदा नहीं किया, उसने सिर्फ डोनेट किया। तो 25,000 एग्जेम्प्ट है, 75,000 टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर बी, ठीक है। चलिए, कंप्यूट द आईटीसी अवेलेबल। आईटीसी अवेलेबल तो मेरे ख्याल में तो क्लेम कर ही नहीं सकते, एक बार फिर भी देख लेते हैं। सीटिंग कैपेसिटी 13 है। मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल ब्लॉक्ड में आता है और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी ब्लॉक में आता है, प्लस इनकी आउटपुट सर्विसेज से भी कहीं से कहीं तक रिलेटेड नहीं है। तो जो एग्जेम्पशंस होते हैं, मतलब जो एक्सेप्शंस होते हैं कि वैसे तो ब्लॉक्ड है पर फिर भी इन लोगों को अलाउड रहेगा, वहां पर भी कहीं नहीं आ रहा। मोटर कार में भी कोई आपका ड्राइविंग स्कूल वगैरह नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको वो अवेलेबल नहीं है, है ना। कोई भी मतलब एक्सेप्शन में भी आप नहीं फॉलो हो रहे हो, तो 175 का भी नहीं मिलेगा। अब इन्होंने सीटिंग कैपेसिटी एग्जैक्ट 13 दिया है ना। सीटिंग कैपेसिटी अगर हमारी वो होती, ज्यादा होती, 15-16 होती तो हमको क्रेडिट मिल भी जाता, बट लेस देन और इक्वल टू 13 में तो ब्लॉक्ड ही होता है, ठीक है। तो 175 और 245 दोनों ही अलाउड नहीं रहेंगे, तो थर्ड का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में इन्होंने क्या करा है, गुरुद्वारा में इन्होंने कम्युनिटी हॉल का रेंट लिया है 8,500 पर डे, ठीक है। और रेंटेड द शॉप्स 10,000 पर मंथ। अब इसकी लिमिट क्या होती है, तो द लिमिट इज बेसिकली कि अगर आप प्रीमाइसेस रेंट मतलब रूम रेंट पर दे रहे हो तो 1,000 और मोर पर डे, है ना। मतलब 1,000 या उससे ज्यादा होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, वहां तक एग्जेम्प्ट है। 1,000 और मोर इज टैक्सेबल, तो एग्जैक्ट भी टैक्सेबल होगा, है ना। प्रीमाइसेस है तो 10,000 है आपका, 10,000 और मोर पर डे। एंड अगर आपका शॉप्स है तो 10,000 और मोर पर मंथ। तो ये शॉप वाला तो टैक्सेबल हो गया, ये हॉल वाला एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 10,000 से कम है इसीलिए। हॉल मतलब प्रीमाइसेस वाला आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, रेंटिंग ऑफ कम्युनिटी हॉल इज टैक्सेबल, नहीं। कम्युनिटी हॉल इज एग्जेम्प्ट एंड कमर्शियल शॉप इज टैक्सेबल, हाँ। तो फोर्थ का हो गया बी। तो अपने कौन से हो गए ऑप्शंस, ए बी डी और बी। देख लेते हैं अपन एक बार, ए बी डी बी, ए बी डी बी, ठीक है। चलो वाह, है ना। तो ये वाला केस सिनेरियो हमने सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं आगे, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, डिटरमाइन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस कि किसको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। शेड्यूल 1, ठीक है। चलो, AB and associates transfer stock of goods from Mumbai to Kolkata for the sale of such goods kept at the depot, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफर हुआ है और फर्दर उसको सेल करने का हमारा इंटेंशन है। मिस्टर रघुवीर, डीलर ऑफ एयर कंडीशनर, परमानेंटली ट्रांसफर्स हिज मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब असेट ट्रांसफर हुई है परमानेंटली। आईटीसी इज ब्लॉक्ड,
हम लोगों ने पढ़ा हुआ है परमानेंट डिस्पोजल ऑफ असेट्स इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन जीएसटी इज टू बी पेबल बट ओनली इफ आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड। जब खरीदा था उस असेट को तब अगर आपने उस पर आईटीसी क्लेम किया है तो आपको ट्रांसफर के समय पर उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसमें आईटीसी ब्लॉक्ड है तो ये डीम्ड सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। मिसेस रिद्धि एम्प्लॉई रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली वर्थ 21,000, अगेन लिमिट के अंदर अंदर है तो भले ही बिना कंसिडरेशन के है आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो 2 और 3 तो है नहीं, 1 वाला है क्योंकि वो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, मतलब बिजनेस के लिए ही स्टॉक ट्रांसफर हुआ है तो इसको सप्लाई माना जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। PZY इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर कार, मोटर कार का मैन्युफैक्चरर है। ठीक है। कंपनी पेड फॉलोइंग अमाउंट ऑफ जीएसटी टू इट्स सप्लायर्स, मतलब इनपुट। कंप्यूट द इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है क्वेश्चन में सॉल्व करते समय। ऑप्शंस जब आप देखो जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हो ना, ये बात मैं हमेशा बताती हूँ हमें हर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स को या ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले स्टूडेंट्स को कि ऑब्जेक्टिव के जो ऑप्शंस बनाए जाते हैं ABCD वो बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सामने वाले को पता है बच्चा गलती कहाँ कर सकता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एलिजिबल आईटीसी है वो भी आपका एक ऑप्शन मैच हो जाएगा और इनएलिजिबल का भी एक ऑप्शन मैच हो जाएगा 99%। अपन चेक भी कर लेंगे। तो क्या होगा कि अगर जल्दी जल्दी में हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कितना होगा और हमने टोटल लगा लिया कि इतना इतना अलाउड है और टिक करके आ गए, जबकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो पूछ रहे हैं इनएलिजिबल कितना है, कितना आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ो और आराम से, और एकदम से ऑप्शन मैच हो जाने पर हमको वो नहीं हो जाना है कि हाँ चलो हो गया। मतलब जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं कैलकुलेशन करने के बाद अगर आंसर मैच हुआ भी है एक बार वापस से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। चलो, जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय PZY, हमने खुद ने ही जो कार्स मैन्युफैक्चर करी उनके लिए हमने इंश्योरेंस लिया तो चलेगा। ये मोटर कार वाले का एक्सेप्शन होता है ना, कि हमारे खुद का बिजनेस ही अगर उसी चीज का है तो हम खुद मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड हैं तो आईटीसी इसके ऊपर चल जाएगा, तो ये एप्लीकेबल अलाउड है। बसेस परचेज फॉर ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज सीटिंग कैपेसिटी 23 अलाउड है। और अगेन हम तो हाँ ठीक है, तो सीटिंग कैपेसिटी 23 है तो अलाउड है। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉय अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो ये भी अलाउड है। और आउटडोर केटरिंग इन दिवाली मेला ऑर्गेनाइज्ड फॉर एम्प्लॉयज, दिस विल नॉट बी अलाउड। आउटडोर केटरिंग सर्विसेज अलाउड नहीं रहेंगी क्योंकि हमारा बिजनेस भी उससे रिलेटेड नहीं है, हम एक्सेप्शन में भी कवर नहीं हो रहे हैं। तो 3,50,000 का जो क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा हमारा इनएलिजिबल हो जाएगा, बाकी तीनों हमको एलिजिबल हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी। अब आप अगर क्रॉस चेक करोगे तो 99% देयर इज अ चांस कि एलिजिबल वाला ऑप्शन भी आपका मैच होता है। देखो, यस दिस विल बी, इफ द क्वेश्चन वाज आस्क्ड एलिजिबल तो आपका आंसर हो जाता सी, है ना। तो ये भी हो सकता है कि ये हमसे गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, हम क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा उस चीज को मिस आउट कर देते, तो वो चीज आपको ध्यान से क्या पूछा है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, है ना। तो वो चीजें आपको ध्यान से समझ के फिर आंसर टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेम क्वेश्चन ही आ गया, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आर इनकरेक्ट अंडर जीएसटी लॉ। ठीक है, इनकरेक्ट। ठीक है, इफ द सप्लायर has erroneously declared a value which is more than the actual value of goods or services, then he can issue credit note for the same. अच्छा, अब क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कब इशू करना है, इसका सबसे इजी तरीका याद रखने का रहता है। बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि डेबिट नोट कब देना है, क्रेडिट नोट कब देना है। उसको सबसे आसान तरीका बता देती हूँ मैं, आपके बेसिक अकाउंट से लिंक कर देती हूँ उसको 11वीं 12वीं के अकाउंट से, कि अगर आप किसी पार्टी को क्रेडिट कर रहे हो तो क्रेडिट नोट दोगे, डेबिट कर रहे हो तो डेबिट नोट दोगे। ठीक है, तो अगर हमने क्या बोला है, हमने एरनेसली ज्यादा वैल्यू डिक्लेयर कर दी, मतलब हमने जो एंट्री करी होगी डेटर टू सेल्स, मैं एकदम बेसिक पे जाकर के समझा रही हूँ ताकि अगर हमको नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम बेसिक अकाउंटिंग तो जानते हैं तो लिंक कर लेंगे। डेटर टू सेल वाली जो एंट्री है वो जितने से होनी थी उससे ज्यादा कर दी, है ना। एरनेसली डिक्लेयर्ड वैल्यू व्हिच इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड अगर 10 लाख है, हमने गलती से 15 लाख से एंट्री कर दी, कम करनी पड़ेगी। कम करनी पड़ेगी तो डेटर को क्या करेंगे, क्रेडिट, तो क्या इशू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट। तो सही है, ये पॉइंट तो सही है। ठीक है, हमको ढूंढना है इनकरेक्ट। If the supplier declared some special discount which is offered after the supply is over, then he cannot issue credit note. बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं कर सकते जीएसटी में क्रेडिट नोट इशू, आप पर्सनली अकाउंटिंग में कर दो चलेगा, लेकिन अगर आपने सप्लाई के बाद का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट की कंडीशंस जो होती है वैल्यू ऑफ सप्लाई में, कि
पहले से अग्रीड डिस्काउंट है चलेगा, पहले से अग्रीड था कि बाद में देंगे वो भी चलेगा, लेकिन सप्लाई ओवर होने के बाद अगर आप डिस्काउंट देते हो उसमें आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में से उस अमाउंट को डिडक्ट नहीं कर सकते हो, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर आप उस डिस्काउंट को माइनस नहीं कर सकते। जब आप उसकी वैल्यू ही कम नहीं कर सकते हो तो फिर डेटर को क्रेडिट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो ये वाला पॉइंट गलत है, मतलब सॉरी ये वाला भी सही हो गया ना, ही कैन नॉट इशू क्रेडिट नोट, हाँ बराबर है, ये भी सही है, सही लिखा है। उनको चाहिए गलत क्या लिखा है। इफ क्वांटिटी रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट इज मोर देन व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द टैक्स इनवॉइस देन सप्लायर कैन इशू डेबिट नोट। क्वांटिटी रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट इज मोर, हाँ ये भी सही है, तीनों ही सही है। चलो, देयर इज नो टाइम लिमिट टू डिक्लेयर, नो दिस इज रॉन्ग, है ना, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है क्या, नहीं होती है, एक टाइम लिमिट तो होती है। तो फोर्थ वाला इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन होना चाहिए सेवेंथ का। एक बार लास्ट के भी हम सारे एक साथ आंसर्स चेक कर लेंगे, है ना, सी ऑप्शन होना चाहिए। बाकी के तीनों तो सही लिखे हैं उन्होंने, एक ही गलत है लास्ट वाला कि कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। यस देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट। चलो, Miss Pearl is a classical singer. She wants to organize a classical singing function, so she booked an auditorium on 10th August. Total amount 20,000. She paid 5,000 as advance on the day. The classical singing function was organized on 10th October. The auditorium owned issued invoice to Miss Pearl on 25th November. तो सर्विस की केस में 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू होना चाहिए। 10 अक्टूबर के बाद 25 नवंबर, तो मोर देन 30 डेज हो गया। अगर इनवॉइस ड्यू डेट के अंदर अंदर इशू नहीं हुआ है तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, प्रोविजन ऑफ सर्विस, है ना। द अमाउंटिंग टू 20,000, ठीक है। पर्ल मेड बैलेंस पेमेंट ऑन 30th ऑफ नवंबर। तो अब यहाँ पर दो चीजें हो रही है, 5,000 का एडवांस है और 15,000 बाद में पे हुआ है। तो यहाँ पर तो पेमेंट पहले ही हो चुका है, पेमेंट और इनवॉइस और वो सब कुछ, तो विच एवर इज अर्लियर देखोगे आप, जब पेमेंट एडवांस में मिल गया तो बात ही खत्म हो गई, बाकी कोई चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है। प्रोविजन ऑफ सर्विस और ये सब कुछ अभी के लिए 5,000 के लिए नहीं भी देखेंगे, हमारा पेमेंट हो गया है तो हम रिसिप्ट के टाइम, मतलब 5,000 का टाइम ऑफ सप्लाई तो क्या हो जाएगा, 5,000 का टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा आपका 10th अगस्त। बचा 15 अगस्त 15,000। इसके लिए पेमेंट को देखेंगे कि इनवॉइस को देखेंगे, तो क्या बोला, अगेन विच एवर इज अर्लियर, लेकिन इनवॉइस की डेट लेनी पड़ेगी कि प्रोविजन ऑफ सर्विस की, वो डिपेंड करेगा इनवॉइस ड्यू डेट के अंदर अंदर इशू हुआ है कि नहीं। तो इनवॉइस is not issued within the due date, therefore invoice date will not be considered। कंसिडर कौन सी करी जाएगी, हमारी प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट। तो इसके लिए हम लेंगे 10 अगस्त और इसके लिए हम लेंगे 10 अक्टूबर, है ना। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ 10th अगस्त फॉर 5,000 एंड 10th अक्टूबर फॉर 15,000, ठीक है। 8th का सी। ABC Limited generated e-way bill on 12th of February 14 hours. It used over-dimensional cargo for distance of 100 kilometer. Validity of ई-वे बिल विल एक्सपायर, कब एक्सपायर होगा, 13 14 फरवरी नहीं, 17 18 17 18, है ना, मिडनाइट ऑफ 17 18 फरवरी। वो किलोमीटर्स के हिसाब से आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, 10th हमारा सब्जेक्टिव है ना। तो चलो आंसर चेक कर लेते हैं। फिफ्थ का आंसर था ए, 6th का था बी, ए बी, 7th का है सी, 8th सी और बी, ए बी सी सी बी। चलो देख लेते हैं एक बार, ए बी सी सी बी, चलो वाह, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स तो हमारे सारे कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं 11th पर। जीएसटी का वैसे छोटा सा ही होता है पार्ट एज सच, क्योंकि जीएसटी है भी वैसे काफी कंपैरेटिवली कंसाइज और इजी गोइंग एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। मिस्टर निकुंज, अ सप्लायर ऑफ गुड्स, पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी, sorry I just missed 10th one. Determine in which of the following independent cases e-invoicing is applicable। e-invoicing किस किस पे लगेगी, और कुछ कुछ केसेस में उस पर मतलब exemption भी दे रखी है, specifically exemption भी दे रखी है। तो देख लेते हैं अपन। हरनाम एंड कंपनी डीलिंग इन एन इंटीरियर डेकोरेटर supplies to various registered and unregistered person, the aggregate turnover is 60 crore, ठीक है। तो लिमिट क्रॉस हो गया है हमारे ई इनवॉइसिंग का, तो ई इनवॉइसिंग इसमें करना जरूरी है। रिच एंड पुअर बैंक, okay, registered under GST has an aggregate turnover 75 crore in the preceding financial year। इसमें भी लिमिट तो क्रॉस हो गई है, लेकिन बैंक हमारी स्पेसिफिकली किस में फॉल हो जाएगा, एक्सेम्पशन में फॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को इनवॉइस ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं है। देखो कैसे लिखना है, समझ लेते हैं। ऑल रजिस्टर्ड बिजनेसेस विद एन एग्रीगेट टर्नओवर from financial year 17-18 and onwards greater than 50 crores are required to issue e-invoicing in respect of B2B supplies।
फर्दर फॉलोइंग आर दी एग्जेम्प्ट कैटेगरीज, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी को एग्जेम्प्ट कर रखा है इन्होंने, जीटीए सप्लायर्स को एग्जेम्प्ट कर रखा है, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स, इन सब का अगर टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर चला जाए तो भी इनको ई इनवॉइसिंग नहीं करना है। तो फिर फर्स्ट वाले पे लगेगा, सेकंड वाले पे नहीं लगेगा, है ना, जो हमने ऊपर कंक्लूजन दिया। एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट, दस हरमन इज हर नाम, सॉरी हरमन हो गया वो, हर नाम, एंड कंपनी इज मैंडेटरी टू इशू ई इनवॉइसेस, बैंक इज स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट, तो फिर आपका टर्नओवर भले ही 50 करोड़ के ऊपर है, ई इनवॉइसिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Excuse me. Mr. Nikunj, a supplier of goods pays GST under regular scheme. He is not eligible for threshold exemption. ये outward supplies करे हैं उसने, intra state, interstate. Furnish the information in respect of purchases. तो इससे ITC निकल जाएगा current month का, और ये opening ITC दे रखा है, ठीक है। Rate of IGST CGST is 9,918%. बोथ इनवर्ड आउटवर्ड आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब इसमें किसी में भी टैक्सेस ऑलरेडी जुड़े हुए नहीं है। ऑल द कंडीशंस ऑफ फॉर नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेएबल, मतलब आपको जुडिशियसली क्रेडिट यूटिलाइज करना है, मिनिमम जीएसटी पेएबल कैलकुलेट करना है ना, कम से कम इन कैश फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, चलो बना लेते हैं अपन। तो पहले तो कंप्यूटेशन ऑफ आउटवर्ड लायबिलिटी, एक पूरा प्रॉपर आपको वर्किंग बनाना है ना। आउटवर्ड निकालो, फिर ऐसा नहीं सिर्फ कैलकुलेटर पर करके छोड़ दिया, प्रॉपरली एक एक चीज की आपको वर्किंग बनाना जरूरी होती है ना। तो कंप्यूटेशन ऑफ आउटवर्ड लायबिलिटी में सबसे पहले तो क्या आ जाएगा आपका, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। इसमें जो जो इंटर स्टेट है और जो इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट आउटवर्ड, इंट्रा है 6 और इंटर है 2, कहाँ गया, इंट्रा है 6 और इंटर है 2, 6 का 9 तो इंट्रा स्टेट, तो 54,000 आईजीएसटी 18,000, है ना। ये हो गया हमारा आउटवर्ड सप्लाई। अब आते हैं इनवर्ट पर। तो ऑलरेडी ओपनिंग दे रखा है अपने को, है ना। ओपनिंग कितना कितना दिया है देखो, इनवर्ड है 15 15 नहीं 15 35 और 20, 15 सीजीएसटी, 35 एसजीएसटी और 20 आईजीएसटी। देन परचेजेस फ्रॉम, ठीक है, तो ये परचेजेस, ये सेल्स है ना, इंट्रा एंड इंटर, 4,50,000 और 50,000। तो 9% से 9 4 36 36 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 18% से 9,000। तो ये आ जाएगा टोटल आउटपुट, सॉरी इनपुट। ओपनिंग और ये मिला करके टोटल लगा लेते हैं अपन। तो 15 और 36 मतलब सीजीएसटी में है 51,000 का इनपुट, 71,000 है एसजीएसटी और 29,000 है आईजीएसटी। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पर आउटपुट 18 लिख दिया गलती से, 18% ऑफ 2 लाख है तो 36,000 आएगा, है ना। ठीक है, चलो कैलकुलेशन में वो हो गया। नेट
अमाउंट पेएबल, तो आउटपुट इनपुट को एडजस्ट करेंगे। चलो आउटवर्ड लायबिलिटी 54 36 थी ना। पहले क्या करेंगे, पहले क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी है ना, तो क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी कितना है ओपनिंग और ये मिला करके 29,000। 29,000 अपन ने यहाँ से एडजस्ट कर दिए। अभी भी अब आईजीएसटी में अभी भी बचा है पहले, फिर अब चलते हैं सीजीएसटी के पास। सीजीएसटी है 51,000, तो सी एक सेकेंड, क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी 51,000 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, फिर ये भी खत्म हो गया। बचता तो हम आईजीएसटी के अगेंस्ट लेके चले जाते, लेकिन नहीं बचा। अब एसजीएसटी देख लेते हैं, अगर बचेगा तो आईजीएसटी पे लेके चल जाएंगे। क्या होता है हमारा रूल फॉर क्रेडिट यूटिलाइजेशन, सबसे पहले आईजीएसटी टू आईजीएसटी सेट ऑफ करेंगे। अगर बचता है तो मतलब आईजीएसटी में अगर क्रेडिट बचता है तो फिर आप क्या करोगे, आप उसको सीजीएसटी एसजीएसटी में किसी भी प्रपोर्शन में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, और फिर सीजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, एंड देन एसजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज करना शुरू करेंगे। पहले खुद के उससे कर देंगे, मतलब सीजीएसटी टू सीजीएसटी बचता है तो आईजीएसटी, एसजीएसटी टू एसजीएसटी बचता है तो आईजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी का क्रेडिट आपस में यूटिलाइज नहीं होगा। अब क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी, क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी कितना है 71, तो 54,000 इधर ले लेते हैं, और 71 में से 54 गए तो बचे 17, 7 यहाँ पर ले लेंगे। क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी का में से 7,000 इधर ले लेंगे, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, है ना। तो ये नेट हो गया 0। एसजीएसटी में क्रेडिट बचा रहेगा, है ना। एसजीएसटी में यूटिलाइज हुआ कितना, 54 और 7 61, 10,000 का क्रेडिट यहाँ पर अभी भी बचा रहेगा एसजीएसटी में। और आपको पेमेंट किसका करना है, पेमेंट आपको करना है सीजीएसटी का 3,000, क्योंकि क्रेडिट अपने पास एसजीएसटी का, लायबिलिटी सीजीएसटी में आ रही है, तो हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। चलो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। मिनिमम जीएसटी पेबल क्या आएगा अपना 51 71 29, ठीक है बराबर, और यहाँ पर आउटपुट 54 54 36, ठीक है। अब एडजस्ट कैसे हुआ, ये 29 से एडजस्ट हुआ, फिर ये आईटीसी आईजीएसटी हो गया, सीजीएसटी टू सीजीएसटी हो गया, एंड बचता तो आईजीएसटी में ले जाते, मैंने कहा ही था, लेकिन नहीं बचा। पहले एसजीएसटी एसजीएसटी से हो गया, बचा तो हम आईजीएसटी पे एसजीएसटी ले गए, बिल्कुल ले गए। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, 3,000, है ना। और इसका एसजीएसटी का जो क्रेडिट बचा है वो बचा ही रहेगा, ठीक है। तो ये बराबर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के, सॉरी 12 पर। नमो शंकर लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर, कंपैरेटिवली बहुत इजी दिया है इन्होंने आरटीपी, मतलब अगर मैं डीटीआईडीटी को कंपेयर करूं तो इट्स क्वाइट सिंपल एंड सीधा सीधा क्वेश्चन, मतलब वैसे भी कंपैरेटिवली सीधे बनते हैं, बट फिर भी। रजिस्टर्ड सप्लायर इन मुंबई हैज सप्लाइड गुड्स टू नारद ट्रेडर्स लोकेटेड इन अहमदाबाद एंड महाराष्ट्र। नारद जी कहाँ है, अहमदाबाद में है, गुजरात मतलब, और ये नंदी महाराष्ट्र। तो ये हो गया इंट्रा, ये हो गया इंटर, है ना। ये क्वेश्चन में दिया हो जरूरी नहीं है, अपने को ध्यान रखना है। नमोशंकर हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। आइटम्स गिवन इन 2 to 4 5 हैव नॉट बीन कंसिडर्ड, ठीक है, मतलब ये इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, नीचे का कुछ भी इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। कंप्यूट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ नमोशंकर लिमिटेड, अज्यूम द रेट्स ऑफ टैक्स टू बी एज अंडर 9918, ठीक है। अरे ये तो इन्होंने खुद ही लिख दिया, मेड टू नारद इज एन इंटरस्टेट सप्लाई। नारद का तो हमने पहले ही देख लिया था ना कि गुजरात और महाराष्ट्र है। वैसे कायदे से लाइन इन्होंने नहीं देनी चाहिए, एग्जाम में नहीं देंगे हाँ ऐसी कोई लाइन तुमको। ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर स्टेट चेंज हो रही है तो अपने को इंट्रा करना है कि इंटर, ठीक है। चलो तो हम क्या क्या निकालना, क्या है पूछा, क्या है वैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना होगा, फिर भी व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, जीएसटी लायबिलिटी, मतलब वही वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे पहले और फिर जीएसटी लगा देंगे उस पर, नारद और नंदी। चलो नारद, नारद और नंदी, प्राइस
10,000 और 30,000। नीचे के जो चार्जेस है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब अपने को ये देखते जाना है कि इसमें से क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या ऐड नहीं करना है। चलो, पैकिंग चार्जेस ऐड होंगे, कमीशन ऐड होगा, पेमेंट चार्जेस ऐड होगा, डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, मतलब पहले से प्री डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड इनवॉइस में है तो डिस्काउंट माइनस किया जाएगा, है ना। तो 1000 हम यहाँ से डिडक्ट करेंगे, तो इसमें ऐड कर देते हैं 500 500। मैं सिर्फ चार्जेस वर्ड यूज कर रही हूँ, आप एक एक करके लिखना है ना। पैकिंग चार्जेस, कमीशन 500 500, इधर क्या था, पेमेंट चार्जेस था शायद, है ना 2000, और लेस हमारा डिस्काउंट हम इसमें से कर देते हैं -1000 का, तो 32 में से एक गए 31,000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 11,000। बस इस पर क्या लगा देंगे अब हम, जीएसटी, है ना। तो लेस डिस्काउंट 1000, इस पे लगेगा, ये गुजरात में है, इस पे लगेगा आईजीएसटी 18% से, इस पे लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% से। वन 1980 2790 2790 देख लेते हैं। चलो आंसर चेक हो जाते हैं, तुरंत चेक करते जाओ, दैट्स बेटर, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ तो। 11,000 31,000 1980 2790 2790। अब नोट्स आपको लिखने हैं, ठीक है, हर चीज के। देखो जैसे ऊपर भी मैंने जहां जहां पर आपको बोला वहां पर, जैसे ये तो ऑब्जेक्टिव था तो ठीक है, पर जैसे वो अगर ऑब्जेक्टिव जो जो दिए हैं उसमें कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, जो मैं बताते जा रही हूँ ना। जैसे वो मैंने बताया आपको चैरिटेबल ट्रस्ट में कि वो डोनेशन कौन सा एग्जेम्प्ट है और क्यों एग्जेम्प्ट है, वो आपको लिखना पड़ेगा, है ना, एग्जाम में। तो नोट्स देने की आदत रखनी है अपने को। जैसे यहाँ पर उन्होंने पूरा पूरा लिखा है, देखो, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कमीशन, पैकिंग चार्जेस, पेमेंट चार्जेस आर आल्सो इंक्लूडेबल एक्सपेंसेस, है ना। डिस्काउंट इज नोन एट द टाइम, तो आप माइनस कर सकते हो। इंटर स्टेट है इसीलिए आईजीएसटी लगेगा। इस तरीके से उन्होंने क्लियरली सब चीजें लिखी हैं, जो भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मैंने डीटी वाले में भी यही बताया आपको कि कोई भी चीज जो हम खुद दिमाग लगा रहे हैं वो आपको वहां पर लिखनी है ना, हर कोई सी भी छोटी से छोटी चीज। लास्ट पे आ गए, एग्जामिन वेदर द लायबिलिटी टू रजिस्टर इज कंपलसरी अंडर सेक्शन 24। ठीक है, तो कंपलसरी जो होती है लायबिलिटीज, उसमें लिमिट नहीं भी हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ना, थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं भी एक्सीड हो तो भी आपको लेना पड़ जाएगा, या फिर आपके मतलब उस पर डिपेंड करेगा, या तो आपको थ्रेशोल्ड। बेसिकली रजिस्ट्रेशन के मैं एक साथ क्लियर करती हूँ, मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, हो सकता है क्लिक नहीं हुआ हो एकदम से। दो केसेस हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के, एक तो लिमिट अगर अपनी क्रॉस हो गई तो, या फिर अगर आपने कोई ऐसे ट्रांजेक्शन अंडरटेक कर लिया जिसमें आपको लिमिट नहीं देखनी होती है। तो देख लेते हैं अपन। कीरा, अ सप्लायर इन हरियाणा, इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ पोटैटोज produced out of cultivation is land within Haryana and also outside Haryana. ना normally interstate supply अगर आप करते हो तो then it is कंपलसरी टू टेक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, आउटसाइड द स्टेट किया है लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो जो भी चीज आप खुद के कल्टीवेशन से बेचते हो उस पे जीएसटी, उसको स्पेसिफिकली जीएसटी से बाहर कर दिया है। मतलब फिर वहां पर अगर आपका थ्रेशोल्ड ज्यादा भी होगा तो भी आपको सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है। क्या बोला है यहाँ पर, 24 provides that persons making interstate taxable supply। 24 जो है वो क्या बोलता है कि आपका रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, इवन इफ आपका टर्नओवर क्रॉस हो रहा है नहीं हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ जाते हो अगर आप इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो। लेकिन 23 में एग्रीकल्चरिस्ट का जो ये है, मतलब कल्टीवेशन ऑफ लैंड से जो भी प्रोड्यूस है वो आपको क्लियरली क्या बोल दिया है, एग्जेम्प्ट बोल दिया है। तो हाउएवर एज पर सेक्शन 23 an agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation of his own land is not liable to registration. He is exclusively engaged in cultivation and supply of potatoes, वो भी वो खुद के उससे कल्टीवेट करके बेच रहा है तो वो 23 में जाकर के एग्रीकल्चरिस्ट में आ जाएगा। तो उसके टर्नओवर बढ़े कम हो कुछ भी फर्क पड़े आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, इवन इफ इस टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। दूसरा वाला केस क्या दिया अपने को, इंडिपेंडेंट केसेस थे, है ना, दोनों ही। इंडिपेंडेंट, हाँ। अनन्या नहीं, अन्य
Anya of Telangana is exclusively engaged in intra-state supply of toys. ठीक है, गुड्स हैं, सिर्फ गुड्स हैं. Its aggregate turnover is 22 lakhs. अब यहाँ पर आपको सेक्शन 22 के हिसाब से देखना पड़ेगा कि थ्रेशोल्ड हमारी क्रॉस हो रही है कि नहीं, है ना. तो हमारी कुछ स्टेट्स में थ्रेशोल्ड होती है 10, कुछ में होती है 20 और 40, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आप सिर्फ गुड्स में डील कर रहे हो. तो देख लेते हैं हम कौन से वाले स्टेट में, हम तेलंगाना में है. तेलंगाना में लिमिट होती है 20 lakhs. फिर आप गुड्स में करो या उसमें करो. काफी बाकी की जो स्टेट्स हैं उसमें वैसे 20 है, बट अगर आप सिर्फ गुड्स में करते हो और कुछ एडिशनल और भी कंडीशंस है वो सब आपने पढ़ी हुई होंगी, तो लिमिट उन्होंने 40 कर दी है. तो देख लेते हैं अपने लिए क्या बोला उन्होंने. सप्लायर इज लायबल, अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी में लेना कंपलसरी होता है. द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई इज, क्योंकि इंट्रा स्टेट में तो लेना कंपलसरी है, ऊपर ही पड़ा, तो इंट्रा स्टेट के लिए थ्रेशोल्ड बता दिया उन्होंने. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड में है 10 लाख. ठीक है, 10 लाख की लिमिट होती है. 20 लाख फॉर स्टेट्स नेमली अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पौंडीचेरी, पुडुचेरी, बेसिकली सिक्किम, तेलंगाना यही आ गया तो बात ही खत्म हो गई. बाकी के लिए 40 lakhs एक्सेप्ट persons engaged in making supplies of ice cream, other edible ice, tobacco, पान मसाला एक्सेट्रा. ठीक है, अगर ये सब है तो फिर ये हायर लिमिट एप्लीकेबल नहीं रहेगी. Since Anya is making taxable supplies from Telangana, she will not be eligible for a higher threshold limit. The sub applicable is 20 lakhs, thus she is liable to get registered under GST. तो भले ही उसने सिर्फ गुड्स में डील करा है, लेकिन वो तेलंगाना की जगह से फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में होती तो 40 लाख तक उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन तेलंगाना में लिमिट 20 करोड़ है, सॉरी 20 लाख है. वेदर और नॉट यू आर मतलब डीलिंग एक्सक्लूसिवली इन गुड्स और सर्विसेज, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना. सो विद इस केस में अपने को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हमारी सर्विसेज मतलब टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू क्रॉस हो चुकी है. ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट द आरटीपी डिस्कशन ऑफ सीए इंटर नवंबर December 21, जीएसटी एंड डीटी बोथ. इन केस ऑफ एनी डाउट्स फील फ्री टू डिस्कस. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस. रेगुलरली जो भी आपका एग्जाम है आपके सारे अमेंडमेंट्स वगैरह प्रॉपर्ली देख करके जाएं, अच्छे से प्रिपेयर होकर के जाएं. मैं ये भी आपको आरटीपीस तो मैंने कर ही दी है रिलीज. जो आपका ये होता है स्टैट्यूटरी अपडेट होता है उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, वो भी लिंक मैं आपको इसी वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी. सो जस्ट गो थ्रू इट ऑल्सो, इट इज इम्पोर्टेंट. अमेंडमेंट है तो वो बहुत ज्यादा जरूरी ऑटोमेटिकली हो जाता है ना. व्हेनेवर देयर इज एन अमेंडमेंट इट बिकम्स एट मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो अपने ऊपर जो सब स्टैट्यूटरी अपडेट एप्लीकेबल है इंस्टीट्यूट का उसको आपको पढ़ करके जाना रहेगा, है ना. इसी के साथ साथ आपका अगर कहीं पर कोई और दिक्कत आती है तो बिल्कुल फील फ्री टू डिस्कस. लास्ट वीडियो में आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द टेस्ट सीरीज. इफ यू वांट यू कैन लेट मी नो, वी विल कोऑर्डिनेट कब कैसे क्या आप लोगों को करना है. ऑनलाइन भी है, ठीक है, सो देयर इज नो इशू. आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं आंसर शीट्स एंड मॉक टेस्ट एंड एक्सेट्रा. सो आई विल बी चेकिंग एंड देन वी विल बी हैविंग डिस्कशंस अबाउट व्हाट वाज द प्रॉब्लम एंड क्या पर हमें इम्प्रूवमेंट करना है, वो सारी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस एंड डू योर बेस्ट, हैव योर कॉन्फिडेंस. बहुत अच्छे से आप सब लोगों ने मेहनत करी है, कर रहे हैं अभी भी. इसी कॉन्फिडेंस के साथ में बिल्कुल अच्छे से अपना एग्जाम लेकर के आए एंड ऑल द वेरी बेस्ट.